पहले था पाठशाला खड़ा। देन है यह पाठशाला आदरणीय गोइंका पिता की, यहाँ विद्यार्थी चढ़ जाते सीढ़ी सफलता की। सदा बहार रहे यह पाठशाला हमारा, बस इसी के साथ शुरू करते हैं कुछ संगीत और कला। Welcome dear parents to our Ruby Jubilee celebration, where we celebrate our 40 incredible years of our school's journey. We are celebrating our 40 years of our school's journey. So now let us invite our dear principal ma'am, Dr. Mrs. Jayashree Narayanan, to come forward to speak few words. A very good morning and a warm welcome to our annual assembly program, that is Unity Through Diversity. Yes, dear parents, enjoy, relax and watch the program. Before we start with any program, let us all pay our obeisance to the Almighty. I request you all to kindly rise up for the prayers. Shri Ganeshaya Namaha. Narad Uvacha Pranamya Shisadevam Gauri Putram Vinayakam Bhaktavasam Smare Nityam Mayukamartha Siddhaye Prathamam Vakratundam Cha Ekadantam Dvitiyakam Tritiyam Krishna Pingaksham Gajavaktram Chaturthakam Lambodaram Panchamam Cha Sashtham Vikatameva Cha Saptamam Vighnarajam Cha Dhumravarnam Tathashtamam Navamam Bhalachandram Cha Dashmam Tu Vinayakam Ekadasham Ganapatim Dwadasham Tu Gajananam Dwadashaitani Namani Trisandhyam Yah Pathe Naraha Nacha Vighna Bhayam Tasya Sarvasiddhikaram Prabhur Vidyarthi Labte Vidya Dhanarthi Labte Dhanam Putrarthi Labte Putran Moksharthi Labte Gatim Japet Ganapatim Stotre Shanabhirmase Phalam Labet Samvatsarena Siddhim Cha Labte Matra Sanshayah Shtebhyo Brahmane Libasya Likhitvaya Samarpaye Tasya Vidya Bhavet Sarva Ganeshasya Prasadatah. Beautiful. Please a huge round for this rendition. I know for prayers we don't clap, but a thunderous applause for this child. Beautiful. Yes, this gives us eternal bliss. Anantam, Anandam, and it's only going to be Anandam, Anandam, Anandam. So relax, enjoy, and wish you all the best. These children require your motivation only through your applauses. So after every program, I want you parents to give them a thunderous applause. That is the motivation they require. Thank you so much. All the best. So parents, fasten your seat belts as we take you on an epic journey across the mountains and valleys of our culturally rich motherland, India. Thank you. The CEO of Epic Tours and Travels, along with his foreign counterpart, is attending the G40 summit on the request of the Prime Minister of India, which is to be held in Mumbai. The plane got delayed and they all are waiting in the waiting lounge. They meet some delegates who too are traveling to Mumbai. After some time, they all start conversing with each other. Hello everyone. Since our flight is delayed, could you please enlighten me with the essence of India? Since I'm from the US and this is my first visit to India. So my dear friend, what would you like to know? As a country, India is rich in culture, heritage and traditions. We believe in unity through diversity. I have read a lot about India, but I'm very curious to know more about Anantam, Anandam. What does it mean? The word Anantam Anandam means infinite happiness.
Our Indian roots have instilled in us the concept of universal brotherhood. In India, in spite of having diverse culture, we live here with peace and harmony and celebrate each and every festival with pomp and gaiety. Hence, we derive pleasure from it and spread happiness. Would you like to have a glimpse of the festivals of India? Sure, why not? So come, let me show you the festivals of India through my laptop. Krishna. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण मुरारी जय हो कन्हैया जय हो मुरारी लीला करेंगे अब गिरधारी गिरिवरधारी कुंज बिहारी नटखट कन्हैया बंसी बजैया अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी चिंता हरेंगे कष्ट हरेंगे आए स्वयं अब श्री गिरिधारी लीला करे है कृष्ण मुरारी जय हो कन्हैया जय हो मुरारी अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी लीला करेंगे अब गिरधारी गिरिवरधारी कुंज बिहारी चिंता हरेंगे कष्ट हरेंगे आए स्वयं अब श्री गिरिधारी कृष्ण मुरारी जय हो कन्हैया जय हो मुरारी लीला करेंगे अब गिरधारी गिरिवरधारी कुंज बिहारी नटखट कन्हैया बंसी बजैया अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी चिंता हरेंगे कष्ट हरेंगे आए स्वयं अब श्री गिरिधारी लीला करेंगे अब गिरिधारी गिरिवरधारी कुंज बिहारी आए स्वयं अब श्री गिरिधारी लीला करे है कृष्ण मुरारी जय हो कन्हैया जय हो मुरारी कन्हैया बंसी बजैया अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी Krishna.
I'm very curious to know more about the festivals of India. India is a land of diverse cultures and beliefs. Festivals are a significant part of our tradition. It acts as a tool for expressing our emotions and devotions to the Almighty. Our country has a rich heritage of literary works. Yes, I agree. I'm from Uttar Pradesh and so many authors from UP have contributed to our Hindi literature such as Munshi Premchand, Harivansh Rai Bachchan, etc. Yes, I know a very eminent author, Harishankar Parsai from UP. His writings carry satirical flavors of various malpractices. So come, let us enjoy the play Sadachar Ka Taweez. भारत एक विविधपूर्ण देश है। यहाँ कई विविधता देखी जा सकती है। भारत को अपनी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई लेखक हैं जिन्होंने अपने लेख लिखकर इसकी लिपि को चार चांद लगा दिया है। इनमें से एक है हरिशंकर परसाई। परसाई जी की इस कहानी में ऐसा तीखा व्यंग है जो आपको केवल हंसाता ही नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर भी कर देता है। ये कहानी है बहुत सालों पुरानी। एक था राजा और एक थी रानी, लेकिन ये कहानी कोई नाना रानी की नहीं जिसे सुनकर लोग सो जाए। ये कहानी है भ्रष्टाचार पर। क्या भ्रष्टाचार पर? पर तुम तो बहुत पहले की कहानी सुना रही हो। क्या उस समय भी भ्रष्टाचार था? हाँ था, पर उसका स्वरूप अलग था। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य हुआ करता था जहाँ एक राजा राज किया करता था। यूं तो वो राज्य बड़ा ही खुशहाल था। उस राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया था। एक दिन राज्य की खुशहाली जानने के लिए राजा ने अपने प्रजावासी को दरबार में बुलाया। आइए देखते हैं। दरबारियों को बुलाया जाए। महाराज, आपने याद किया? दरबारी, सारे प्रजा के लोगों को यहाँ बुलाओ। जी महाराज। सुनो सुनो सुनो, महाराज ने सभी प्रजावासियों को दरबार में बुलाया है। अच्छा किया बुलाया। हमें राजा से मिलना है। हमें न्याय चाहिए। रुको रुको रुको, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? महाराज ने तुम्हें कल बुलाया है। धन्यवाद। महाराज ने सभी प्रजावासियों को दरबार में बुलाया है, इससे हमें क्या फायदा? हमारी भी तो जेब गर्म होनी चाहिए। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? हमें महाराज से बहुत गंभीर समस्या के बारे में बात करनी है। हमें अंदर जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें बिना चाय पानी दिए? चाय पानी? चाय तो मेरे पास है नहीं और पानी तो मैं घर छोड़ आई। अरे चाय पानी मतलब पैसा पैसा। अच्छा रुको। ये लो 2 मुद्राएं। सिर्फ 2 मुद्राएं? अब हमारे पास इतना ही है। हाँ ठीक है, इतना ही काफी है, नहीं तो ये भी हाथ से चला जाएगा। जाओ तुम लोग। ये तो देखो, द्वारपाल भी लोगों से घूस ले रहा है। बेचारे लोग। इतनी मेहनत से ये लोग राज दरबार में पहुंच गए। आइए देखते हैं अपने राजा के सामने राय कैसे पेश करेंगे। महाराज की जय हो। प्रजा, राज्य में सब कैसा चल रहा है? महाराज, हमें न्याय चाहिए। न्याय? वो क्या चीज है? अन्याय सुने? इंसाफ महाराज, इंसाफ चाहिए। अच्छा, इंसाफ। महाराज, हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, बच्चे भूखे सोते हैं। हमारे पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, हर जगह दुगना दाम मांगा जाता है। राज्य में भ्रष्टाचार फैल गया है। भ्रष्टाचार? ये कौन सा अचार है? मुझे तो आम का अचार पसंद है। अच्छा, अब तुम जाओ, हम और हमारे महाराज उस पर विचार करेंगे। जाओ। धन्यवाद महाराज, आज्ञा लीजिए। भ्रष्टाचार तो कुछ ज्यादा ही फैल गया है। अब क्या हुआ? राजा इतने चिंतित क्यों है? अब अपनी समस्या का कारण तो वो स्वयं ही जाने। आइए देखते हैं।
महाराज, महाराज, क्या हुआ रानी साहिबा? आप इतने चिंता में क्यों हो? प्रजा बहुत धन लालची हो चुकी है। धन लालची मतलब वो धन के पीछे भाग रहे हैं क्या? वो हमें भी नहीं पता, इतना पता है राज्य में भ्रष्टाचार है। अच्छा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका हल जरूर निकाल सकती हूँ। सच में? मुझे लगा इसका हल कोई नहीं निकाल पाएगा। चलिए आप दरबारियों को बुलाइए। दरबारियों को बुलाया जाए। हमारे महाराज ने कहा है कि प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है, सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक नहीं दिखा, अगर तुम लोग को दिखे तो बताओ। जब महाराज को नहीं दिखा तब हमें कैसे दिख सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वो तुम्हें दिखता है, जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते, तुम्हें दिखते होंगे। जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ लो, अगर कहीं मिल जाए तो मेरे देखने और चखने के लिए लेते आना। महाराज, वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वे बहुत बारीक होता है। हमारी आंखों को आपकी विराटता देखने की इतनी आदत है, हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज, बारीक से बारीक चीज नहीं दिखाई देगी। हमारी अगर हमें भ्रष्टाचार का भी मिला भी तो हमें उसमें आपकी ही छवि दिखाई देगी। हाँ, मगर हमारे राज्य में एक विशेषज्ञ नाम की जाति रहती है जिसे सब कुछ दिख जाता है। मेरी मानिए तो हम उन्हें ही भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपते हैं। विशेषज्ञ बुलाओ। राजा ने अब विशेषज्ञों को बुलाया है। अब वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या बातचीत कर रहे हैं। राजा ने हमें क्यों बुलाया होगा? क्या तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा है? मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं। आओ चले राजा से ही पूछे। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। विशेषज्ञों, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वो कहाँ है वो हमें नहीं पता। तुम उसे ढूंढ कर लाओ। जी महाराज, हम आपके लिए भ्रष्टाचार का नमूना जरूर लाएंगे, पर हमें उसे ढूंढने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। जाओ, मैं तुम्हें 2 महीने की मोहलत देता हूँ। आज्ञा दीजिए महाराज। राजा ने विशेषज्ञों को आदेश दिया कि जाओ और इस भ्रष्टाचार को ढूंढो। अभी देखते हैं कि भ्रष्टाचार मिलता है कि नहीं। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। वे दरबार में 2 महीने बाद हाजिर हुए। देखे कि 2 महीने बाद दरबार में क्या होता है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हुई? जी हुजूर। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? बहुत सा मिला। क्या? दिखाओ, कैसा होता है? हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता। वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, बारीक है, अगोचर है, पर सर्वव्यापी है। उसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है, बारीक है, सर्वव्यापी है। यह सब तो ईश्वर के गुण है। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? हाँ महाराज, भ्रष्टाचार अब ईश्वर हो गया है। चंद पैसों के लिए जो अपना ईमान खोते हैं, ऐसे ही लोग भ्रष्टाचारी होते हैं। पर वो है का? दिखता कैसे है? उसे फैलने में ज्यादा देर नहीं लगती। वह चुटकियों में फैलने वाली चीज है। वह राक्षस है। वह सर्वत्र है। वह इस भवन में है। वह महाराज के सिंहासन में है। क्या? हाँ, सिंहासन में है। हाँ महाराज, सिंहासन में है। आपके पूरे प्रशासन में भ्रष्टाचार है और मुख्य घूस के रूप में है। घूस लेना या देना पाप है। यहीं से भ्रष्टाचार का शुरुआत है। यह तो बड़ी चिंता की बात है। मैं तो भ्रष्टाचार पूरी तरह मिटाना चाहता हूँ। इसे कैसे मिटा सकते हैं? पर हमने उसकी भी योजना तैयार की है।
भ्रष्टाचार के मौके मिटाने के लिए हमें महाराज की व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन लाने होंगे। अच्छा अच्छा, अब तुम जाओ, हम और हमारे महाराज उस पर विचार करेंगे। जाओ जाओ। आज्ञा दीजिए महाराज। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। आइए देखते हैं महाराज के दरबार में दरबारियों के साथ। दरबारियों को बुलाया जाए। दरबारी हाजिर हो। ऐसे रिपोर्ट को तो आग के हवाले कर देना चाहिए, जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। महाराज, मेरे पास एक सुझाव है। हमारे राज्य के एक मंदिर में एक महान साधु कड़ी तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने एक सदाचार का तावीज बनाया है। वे बाहर ही खड़े हैं हमारे दरबार के। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम उन्हें बुला सकते हैं? बुलाओ। साधु को बुलाया जाए। साधु हाजिर हो। आपने मुझे याद किया महाराज? साधु महाराज जी, मैंने सुना है आपने एक सदाचार का तावीज बनाया है। हाँ, उसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाते हैं तब वह किसी की आत्मा में अच्छाइयत और किसी की आत्मा में बुराइयत डाल देते हैं। इसी को देखते हुए मैंने एक सदाचार का तावीज बनाई है, जिसे अगर कुत्ते के गर्दन में भी पहना दो तो वह रोटी चुराना छोड़ देती है। महाराज, राज्य क्यों झंझट में पड़े? मेरा निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली के साथ ताबीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। मैं आपको और एक ठेकेदार को एक ठेका देता हूँ, वहाँ आप मिलकर मेरे प्रजावासियों के लिए कई तावीज बनाइए। आगे दीजिए महाराज। राजा को यह सुझाव बहुत पसंद आया। साधु और ठेकेदार को तावीज बनाने का ठेका दे दिया गया। एक दिन राजदूता जागी और उन्होंने सोचा कि देखो तो ये तावीज कैसे काम करती है। वे भेष बदलकर एक दुकानदार के पास गए और उस दिन 1 तारीख थी, मतलब तनख्वाह मिलती थी। वह उस दुकानदार को कई काम बताकर उन्हें घूस देने की कोशिश की। राजा बहुत खुश हुए। तावीज ने दुकानदार को ईमानदार बना दिया था। वे फिर भेष बदलकर उसी दुकानदार के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। आइए देखते हैं उस दिन क्या हुआ। टमाटर, लाल ताजे टमाटर, टमाटर, लाल लाल टमाटर। क्या तुम मुझे अपना सारा सामान दुगने दाम में दोगे? सारा सामान? अधिक मुद्राएं दूंगा। अधिक मुद्राएं दीजिए। क्या तावीज तो काम ही नहीं कर रहा? इसने तावीज तो बांधा है। देखो तो मेरे तावीज से क्या आवाज आ रही है। आज तो 31 है, आज तो ले ले। ये समस्या तो यही की रही गई। Music plays a very important role in our festivity as it gives an essence to it and helps us to connect with the masses. Come, let me give you the flavors of various festivals through music.
केसर तिलक लगाओ, जश्न दिवाली मनाओ, जश्न दिवाली मनाओ। तिलक लगाओ, लक्ष्मी बनाओ, तिलक लगाओ, लक्ष्मी बनाओ। धनतेरस का दीप जलाओ, तिलक लगाओ, लक्ष्मी बनाओ। जब से राम जी पधारे वनवास से, खुशियाँ लाए वो भर के अपने आंगने, रूठे रिश्तों को फिर से मनाने, पधारे अपनों को अपनों से मिलाने। सबके दिलों का सबसे प्यारा आया खुशियों वाला त्योहार। बधाई हो दिवाली की, बधाई हो दिवाली की बधाई। जश्नों की दिवाली अपनी है दिवाली। बधाई हो दिवाली की बधाई, बधाई हो दिवाली की बधाई। मीठा मीठा भोग लगाया, लगाया। रंगोली रंग जमाया, जमाया। मीठा मीठा भोग लगाया, लगाया। रंगोली रंग जमाया, जमाया। एक रंग ने तुझे धर्म का न्योता ही प्यार बनाया। एक पर्व ने सबको मिला के अपने हिंद को सजाया। जश्न मनाओ, दीप जलाओ, बधाई। बधाई हो दिवाली की बधाई, बधाई हो दिवाली की बधाई। दिवाली 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 दिवाली। सजन के रोजी दीपावली मनाओ जी। दिवाली साथ मनाओ, अंधेरों को मिटा के रोशन करने घर को आओ। ईद से ईद मनाओ जी, लगाओ जी। आई अपनी दिवाली आई, घर में रोका है छाई, उजियारा बन के लाई, मारी होकर आई, सबके दिलों में छाई।
Still tickles my eardrums. Do you know dance has traditionally been an important part of the religion and culture? It also incorporates melody, drama and aesthetic values. Come, let's experience the unique combination of various dance performed in India. The amalgamation of the northern and the southern cultures. We present you the Kolatam and the Rough dances. பாடாயோ ஓடிவாராய்
performance, the precision, the expression and the synchronization of the dances were just remarkable. I too feel like being one with them. Come, let's dive deeper in the diverse culture of India that ensures a wide and a complex range of tales which helps us maintain the traditional language and customs of different regions, religious and social groups and tribes. So come, let's experience that powerful influence of folk tale in Indian culture. नमस्ते, गोकुलधाम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की तरफ से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। हमारे देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती है। भारत में अनेक जाति और धर्म के लोग साथ मिलकर रहते हैं। क्या आप जानते हैं लोक कथा का अर्थ क्या है? लोक कथा का अर्थ है लोकप्रिय संस्कृति में उत्पन्न एक कहानी जो आमतौर पर पारित की जाती है। इसलिए आज हम आपको ऐसे ही एक लोक कथा दिखाने वाले हैं जिसका नाम है अकलगड़िया भैंस। बहन जी, क्या आपके पास पानी है? मैं खाना बना रही थी और मेरे पास थोड़ा भी पानी नहीं है। नहीं, मेरे पास तो पानी नहीं है। चलो पड़ोस में पूछ कर आते हैं। बहन जी, क्या आप दोनों के पास पानी है? खाना बनाने के लिए पानी ही नहीं है। चलो नदी के पास जाके देखते हैं। अरे ये क्या? गांव के सारे नदी तालाब तो सूख चुके हैं। लगता है कोई प्रलय आया होगा। चलो मुखिया जी के पास चलते हैं। घाव लखनपुर में वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया था। सारे नदी तालाब कुएं सब सूख चुके थे। फसल नष्ट हो गई थी। सारे के सारे लोग चिंतित थे कि करें तो क्या करें। चिंता में डूबे सभी गांववासी अपने मुखिया रामदीन के पास पहुंचे। मुखिया जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। गांव में एक बूंद भी पानी नहीं है। भाइयों, आप सब पहले शांति से बैठ जाओ, फिर एक एक करके मुझे अपनी समस्याएं बताओ। मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं गांव के सारे नदी तालाब सूख चुके हैं। गांव में के हर घर में एक बूंद भी पानी नहीं बचा। मुखिया जी, यदि हम इसी तरह गांव में बैठे रहे तो सब के सब भूखे प्यासे तड़प कर मर जाएंगे। आप गांव के बड़े हैं, आपको ही हम सब के बारे में सोचना होगा। भाइयों, आप चिंता मत करो, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय तो दो। अभी हमें यह तो सोचना ही होगा कि घर बार छोड़कर हम जाए तो जाए कहाँ। घर छोड़ना आसान नहीं, फिर एक घर छोड़ने के पश्चात दूसरा बसाना उससे भी कठिन है। बस्ती बसाना खेल नहीं, वह बसते बसते बसती है। मुखिया जी, हमारे सोचने का समय ही नहीं है। अब भूख और प्यास से मरने की नौबत आ चुकी है, इसलिए हम एक पल भी इस गांव में नहीं रहेंगे। धैर्य से काम लो। जाने से पहले हम लोग को थोड़ा बहुत तो सफर का सामान तैयार करना होगा। अपनी मंजिल के बारे में सोचना होगा। क्या आपको यह नहीं पता कि हमारा गांव चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ है? होगा मुखिया जी, हमें अपनी जान के बारे में पहले सोचना है। अब आपके पास वो शक्ति नहीं रही जो गांव के युवकों के पास है। आप वास्तव में बूढ़े हो चुके हैं। यदि आप हमारे साथ नहीं आए तो मैं अपने साथियों को लेकर यहाँ से आज चले जाऊंगा। बेटे रामा, मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, किंतु एक बात याद रखो कि बुद्धि और आयु में बहुत अंतर होता है। क्या आप प्रयोग कहना चाहते हैं हम लोगों के पास बुद्धि नहीं? मैं ऐसा नहीं कहता बेटे, मैं तो केवल यह कह रहा हूँ, इंसान के पास बुद्धि तो होती है, किंतु उस बुद्धि का प्रयोग अनुभव से ही होता है। तुम्हारे पास बुद्धि तो है, किंतु अनुभव ना होने के कारण तुम उसका सही प्रयोग नहीं कर रहे हो। बस बस काका, अब यह बातें रहने दो। हमें अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है। शक्ति का ही दूसरा नाम बुद्धि है। यदि आप लोग भूखे प्यासे मरना चाहते हैं तो मरिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, किंतु अब हमसे यह सहन नहीं होगा। जोश के साथ होश की भी जरूरत होती है। तुम सब थोड़ा धैर्य से काम लो, ये तुम्हारे लाभ की ही बात कर रहे हैं। नहीं मुखिया काका, अब जो हमने निर्णय लिया वही होगा, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, गाँव वालों से तो मैं यही कहूंगा, जो लोग हमारे साथ आना चाहें वो इसी वक्त चले, जो आपके साथ आना चाहें वो आपकी राह की प्रतीक्षा करे। मैं अभी भी यही कहूंगा कि तुम हम गाँव वालों के साथ रुको। चलो साथियों, ये गांव छोड़ने का समय आ गया है। हाँ हाँ चलो। रामा
बात से सारे गांव वालों में एक विचित्र से युद्ध आरंभ हो गया था। वे 2 धड़ों में बच चुके थे। एक धड़ा नर्म दल का था जो कश करके मुखिया के फैसले का इंतजार करना चाहता था। दूसरा धड़ा गर्म दल का था जो रामा के साथ मिलकर उसी समय गांव छोड़ देना चाहता था। साथियों, ये गांव छोड़ने का समय आ गया है। हाँ, चलो। उन्हीं उनको का विचार था कि वे दूसरे देश जाकर व्यापार करेंगे। अब खेती बाड़ी तो समाप्त हो गई। देखो मेरे साथियों, कल हम इस गांव को छोड़कर जाने वाले हैं। हमारा ये निर्णय खुशी से भरा नहीं बल्कि दुख से भरा है, परंतु ये सब हमारे वश में नहीं। हम मजबूर हैं, बेबस है। प्रकृति का भयंकर खेल हमें हमारे पूर्वजों को गांव छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। आज यह निर्णय लेते समय मुझे अपने हृदय पर पत्थर रखना पड़ रहा है, परंतु हमारे पास और कोई चारा नहीं। हाँ, एक बात आप जाने से पहले जरूर सुन लें। वो क्या है मुखिया जी? हमारे गांव से थोड़ी दूर घने जंगल में एक पांडवों के समय का तालाब है। उस तालाब में अभी भी थोड़ा पानी बाकी है। तुम सब उस तालाब से जितना अधिक पानी इकट्ठा कर सकते हो सब मिलकर अपने अपने बैलगाड़ियों में रख लो, क्योंकि हमारा रास्ता लंबा है और आगे कहीं हमें पानी भी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमें हर स्थान पर एक नया कुआं खोदना पड़ेगा, जो सबसे कठिन काम है और उसमें बहुत समय भी लगता है। दूसरा, तुम लोग अपने साथ जितना खाने का सामान ले सकते हो उतना ले लो। इस मरुस्थल में हमें जहाँ कहीं भी छाया मिलेगी हम वहीं खाना पका लेंगे। ठीक है मुखिया जी, हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। आप हमारी भलाई के लिए सोच रहे हो। चलो अपने अपने घर जाकर अपने सफर का सामान तैयार करते हैं। कल सुबह होते ही हम अपने सफर के लिए निकल जाएंगे। इतनी बात कहकर सब गाँववासी वहाँ से चले गए और अपने अपने घरों में जाकर सफर की तैयारी करने लगे। रामा का काफिला भी उसी राह से चल रहा था। उनके पीछे पीछे उसी गांव का दूसरा काफिला भी चल रहा था। मुखिया के काफिले वालों ने यह आश्चर्य से देखा कि रास्ते में 1-2 स्थानों पर ताजे कुएं खुदे हुए हैं। ये कुएं रामा के साथियों ने ही खोदे होंगे। अरे ये क्या, यहाँ तो हर जगह कुएं खोदे हुए। पर ये किसने खोदे होंगे? ये कुएं जरूर रामा और उसके साथियों ने ही खोदे होंगे। यदि वे लोग गांव से पानी लेकर जाते उन्हें अपनी शक्ति इस तरह नष्ट न करनी पड़ती। यही हाल होता है बुद्धिहीन लोगों का। और फिर जब वे लोग उस भयंकर मरुस्थल में प्रवेश करेंगे तो उनका क्या बनेगा? उस मरुस्थल में पानी का नाम तक नहीं, न ही उसमें कोई कुआं खोदा जा सकता है। तब उन बेचारों का क्या बनेगा? यह मूर्ख रामा स्वयं तो मरेगा ही, अपने साथ दूसरों को भी मारेगा। जहाँ कहीं भी अच्छी जगह मिल जाए मित्रों। मगर आप लोगों ने बैलगाड़ियों पर इतना पानी भर रखा है, इतना बोझ को लेकर बैल कहाँ तक चलेंगे? हमारा रास्ता लंबा है और आगे मरुस्थल भी आने वाला है। वहाँ हमें कई दिनों तक पानी नहीं मिलेगा। तुम पागल हो मुखिया, क्या तुम यह नहीं जानते कि यदि तुम इस पानी के बोझ को बैलगाड़ियों से उतार दोगे तो ये तेज चलना प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार तुम लोग बहुत जल्दी ही मरुस्थल को पार करके उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां पर आप लोगों को हर चीज मिलेगी। मगर पानी के बिना तुम एक पल भी नहीं रह सकते मित्र। अरे मूर्ख, देख नहीं रहे हो हमारे कपड़े भीगे हुए हैं, आगे बड़े जोरों की वर्षा आ रही है। वर्षा, और वो भी मरुस्थल में? यह तुम क्या कह रहे हो? हाँ, हम झूठ नहीं बोल रहे, मगर फर्क केवल इतना ही है, यह वर्षा मरुस्थल को पार करते जंगल में हो रही है। इसलिए अपनी अपनी बैलगाड़ियों से पानी के बर्तन उतार दो, इससे बोझ कम हो जाएगा। बैल तेजी से चलेंगे और तुम लोग बहुत जल्दी ही मरुस्थल को पार करके उस जगह तक पहुंच जाओगे जहां पर जोरों की वर्षा हो रही है। वहाँ पर तुम लोगों को खाने को भी खूब मिलेगा। अब जो भी कुछ कह रहे हैं वो ठीक है, किंतु हम इस बारे में सोचकर निर्णय करें। हाँ, यही ठीक रहेगा। देखो मेरे साथियों, तुम लोग इन नरभक्षियों के बारे में कुछ नहीं जानते। ये बड़े भयंकर और खूनी होते हैं। ये अपनी शिकार की तलाश में जंगलों और मरुस्थलों में घूमते रहते हैं। अभी इन्हें पता है कि हमारे पास भरपूर पानी है। ये हमसे हमारा पानी फेंकवा कर हमारी शक्ति कम करना चाहते हैं, ताकि जब हम प्यास से व्याकुल इस मरुस्थल में तड़पते नजर आएंगे तब ये हमें घेर कर मार देंगे और भून कर खा जाएंगे। क्या कह रहे हो मुखिया जी? हाँ, ये सही कह रहे हैं।
तुम उन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ, चुपचाप चलते रहो, ये तुम्हारे भले की ही बात कर रहे हैं। बेचारे गांव वाले बुझे दिल के साथ मरुस्थल में चलने लगे। वहां पर सूर्य की गर्मी तो थी ही, साथ ही साथ रेत भी आग की भांति जल रही थी। हर क्षण उन्हें प्यास तड़पा रही थी। वे पानी का घूंट भर भर कर आग को ठंडा करने का प्रयत्न कर रहे थे। कितना भयंकर मरुस्थल था। जहाँ दूर दूर तक पानी के छायादार वृक्ष भी नजर नहीं आते थे। अभी वे थोड़ी ही दूर चले थे कि उनके सामने ही एक रेत के ढेर पे रामा और उसके काफिले की लाशें पड़ी दिखी। अरे ये क्या ये सब के सब मारे गए? मुझे पता था रामा जोश के साथ होश खो बैठेगा। ये सब कैसे हुआ मुखिया जी? आप सबने जिन लोगों को मरुस्थल में देखा था वो वास्तव में मानव वेश में जंगल के नरभक्षी थे। वो हमसे हमारा पानी फिकवा देना चाहते थे ताकि हमारी आदि शक्ति कम हो जाए और वो हमें बड़े आराम से मार दे। यही चाल उन्होंने रामा के काफिले के साथ चली होगी। जैसे वो हमें कह रहे थे कि आगे तो बड़े जोरों से वर्षा हो रही है। यदि हम आपकी बात न मानते तो हमारा भी यही हाल होता। जो आपकी बात नहीं मानते वो सदा दुख पाते। It's so interesting. I was not aware how powerful and influencing folktales are. I simply loved it. Our culture is very rich, vibrant and colorful. Let's get immersed in that color with Diwali and Garba dance. खुशियों की बाती, मस्ती की रोशनी सबको लुभाती। प्रेम के दीप है खुशियों की बाती,
मस्ती की रोशनी सबको लुभाती, आंगन ये लगता है पूजा की थाली, गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली। इस दिवाली को ऐसे मनाएंगे, घर घर गरीबों के दिए जलाएंगे, दिन और दुखियों की कर दे सहाय, सबका मुंह मीठा हो बांटे मिठाई। लक्ष्मी और सरस्वती देवी का पूजन हो, व्यापार धंधे तरक्की से रोशन हो, आया है सुंदर ये ज्योति का त्योहार, जगमग चमके हैं हर परिवार। देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई, दिवाली गोकुल धाम की ये देखो दिवाली आई, दिवाली देखो दिवाली आई। What an enthralling performance. I really enjoyed every single bit of it. We had a glimpse of spectacular festival dances and melodious songs from different parts of India. What is the traditional attire worn on these festivals, and on what occasions do you celebrate? Oh yeah, what about authentic food? You will be amazed to see that we have different traditional dress worn in different states. Food is the integral part of our culture. Our festivals are celebrated for scientific reasons to take care of change of weather on humanity. These festivals infuse new energy and enthusiasm for all. Let us have a look at how we dress up and what all food we eat during festivals celebrated in different states of India. किंगरी का झाला घुगुती, मंगरी का डाला घुगुती, ले घुर घुरांदी घुगुती, ले फुर उड़ांदी घुगुती। किंगरी का झाला घुगुती, मंगरी का डाला घुगुती, ले घुर घुरांदी घुगुती, ले फुर उड़ांदी घुगुती। ये टक लगांदी घुगुती, के रंद बिंगांदी घुगुती, के देश की होली घुगुती, के देश में आई घुगुती। किंगरी का झाला किंगरी ओ ये बुले बिहुआ सक 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 सकी धिनकिती धिनकिती धिन दाओ दाओ। ओह ये बुले बिहुआ सक 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 सकी धिनकिती धिनकिती धिन दाओ दाओ। धिनकिती धुले बाओ। ओए ती ती तोलो पे पाबा। ओए धिनकिती धुले बाओ। ती तोलो पे पाबा। ओ दांगो मा खरु मारुनु मा
मेरी माड़ी आज रमती आवे We thoroughly enjoyed each and every show. India is really great. Your face looks quite familiar. Even I was trying to recollect if we have met before. Are you from Gokuldham High School? Yes, I am. Do you know Gokuldham has completed 40 incredible years? Do you remember those assembly programs we used to have when we were students? I remember each and every landmark achievement of our school. Wow, the completion of 40 incredible years. Ruby Jubilee celebration. I have been asked to present a PPT on the archives of GHS. What a timeless coincidence. memories. So come, let us have a glimpse of his journey. To the ones here today, toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in a castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me home?
Commendable. It was indeed nostalgic, reminiscing the past. These memories help us in the present too. It gives me immense pleasure to call all the delegates who are Gokulites attending the summit. Let us welcome them on the dais with a huge round of applause. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Moments like this. Chihuahua. इस दिन आंखें खुली इस जहां में और देखी सूरज की रोशनी। दुनिया ये हंसी देखे जाए मगर एक उम्र भी है काफी नहीं। यही तो सच जो देखे तो मुस्कुराने की है सौ वजह। ये सूरज कहे नीले आसमां से हम तो सारे ही है जुड़े इस तरह। जिंदगी तो सबको बांधे चली। हम है खुशी भी प्यार भी यही भी ढूंढे अपनी जगह है जुड़े इस तरह। जिंदगी No program can conclude without our school song, our school anthem. Let us all sing it together. उत्तम शिक्षा उत्तम दीक्षा उत्तम सारा काम है। हम सबका प्यारा विद्यालय अपना गोकुल धाम है। सरस्वती माँ की भक्ति करके गर्व शक्ति से गाता है। विद्या का है कल्प वृक्ष यह जो माँ को मिल जाता है। छोटों को भरपूर प्यार और बड़ों को मिलना मान है। हम सबका प्यारा विद्यालय अपना गोकुल धाम है। इसमें पढ़ने वाले हरदम आगे बढ़ते जाते हैं। हर कठिनाई के पर्वत पर हंसते चढ़ते जाते हैं। सभी क्षेत्र में सबसे आगे यही हमारा नारा है। आनंद 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 तूफानी लहरों से लड़कर बादलिया किनारा है। सभी क्षेत्र में सबसे आगे यही हमारा नारा है। गोकुल धाम तो हमको रखना सदा ही ऊंचा नाम है। हम सबका प्यारा विद्यालय अपना गोकुल धाम है। हम सबका प्यारा विद्यालय अपना गोकुल धाम है। हम सबका प्यारा विद्यालय अपना गोकुल धाम है। On behalf of all, we would like to express our gratitude for giving us these moments of eternal bliss, for giving us a platform to unleash our talents. So now I would like to invite our dear Principal Ma'am
Dr. Mrs. Jayashree Narayan to come forward and propose the vote of thanks. Once again, a very good morning. And yes, at the very outset, I would like you all to give a thunderous applause to our grade 8 students for the power-packed performance. Enthralling performance, it was commendable. I can't hear your clap. And yes, it has to reverberate the whole audience. It was excellent, children, excellent. All these delegates who are representing different batches, 1989 onwards, our grade SSC students had passed out from our school. Here you have them representing our school and had a remarkable journey. We are very privileged that in the first batch we had the 1989 student who was our chief guest and who lit the lamp and started off with the program. Mr. Sauvik Bakshi and his spouse were present here in the first slot for the grade 8th program. Dear parents, the G40 Summit, that is the 40 years of this grand extravaganza celebrated by our grade 8 students, was about the 40th year or 40 years of the legacy which the GHS has left behind. And yes, they have to carry it forward because they are our future generation. Nothing can be successful without your efforts, your support, and your motivation. Yes, dear parents, it was so beautiful, the blend of festive colors, the soulful singing, the foot tapping dances, and yes, those emotions which churned out through gratitude was commendable. The relentless efforts of all our staff is the end thing, and that is the teachers, our ancillary staff, and our students have come together and have brought this event successful. So a huge round of applause for all our teachers. Can't hear again. And yes, these are all our 10th standard students who are representing our ex-students who have left the portals of our school. Dear parents, a happening place, a happy place, a heartwarming place, and a hard-to-find place is what Gokul Dham School is. And I'm very proud with all these Gokul lights who are going to be representing not only our school, our country, and all over the world. And yes, these are all the G40 delegates who have come from all parts of the world to attend this assembly program. It was infusing both cultural diversity and our 40 years of celebration. I express my sincere gratitude to each one of you present here for having graced the occasion and blessed our children. Now I would request all the teachers involved in this for this successful event. First, let me call upon my vice principals. Please come forward, my supervisors, all the teachers involved to kindly come up on stage. And yes, please give them a very big round of applause. Everybody has put in a lot of hard work. Yes, my staff there on top. Ravi, Vaibhav. Come on, please come on stage. And please keep clapping for all these teachers, non-teaching staff. Keep clapping. A glimpse of our GHS archives was just shown to us. There is much, much more in the last 40 years. This reminiscing of our past has really been very, very enriching and also nostalgic, dear parents. There are many parents who are seated here are also maybe ex-Gokulites. Maybe you are not filled in the form, so I couldn't call you on stage. Is there anybody here? Ex-Gokulites. Please come forward. A huge round. See, what happens is, we had sent forward a Google form and we had asked all our children to please fill it up. God bless you. God bless you.
You're very proud. Yes, dear. Can you introduce yourselves and tell the batch, please? Hi everyone, my name is Mohit Mane. I was in 10th E in the school, and now I'm giving NEET. I want to be a doctor. Thank you. Stay blessed, dear. Good morning all, this is Nandita Sharma, a proud ex-Gokulite, year 2018 for school and 2020 for GHS College. It was truly a nostalgic moment for me, seeing the entire video of how our college life and school life was. Thank you so much. Thank you, dear. It was only because of you children we are still alive. I'm Ragvi Karya, I am a past student in 2020 batch. I feel so proud to be passed from Gokulam High School because this school has given me so much memories, the values, and I'm going to always cherish that. Yes, dear. Thank you so much. Hello ma'am, I'm Lokesh Singhania from 2021 batch, and I was from Northeast person, but the school is best for me. I am coming from my brother's assembly program and it's been very happy and delightful for me. Thank you ma'am, thank you teachers. Jayashree ma'am, I really admire you. I've seen, my sister is here, and I've seen every time I've come, the passion you have for the students, the connect you have with them. I really admire you for that. I am not able to remember the name. Aditya Bhatnagar. We passed the 2018, yeah. The doors are always open for you children. Anybody else? Okay. Sai? Who's that? Please. Hello everyone. I'm from the same batch as Nandita and Aditya, and the PPT was really enjoyable. I got to remember a lot of moments I spent here, and entering from the stairs and seeing the classrooms all the same, it was very nostalgic. And thank you. Yes, thank you, dear. Thank you. All of you all stay blessed, always blessed. Live by your values, whatever you have imbibed here in the school, at home, and all times. Thank you so much. All the best to each one. And as yes, a huge round of applause for all my teachers here who are present. A round of applause. A thunderous applause. Thank you so much. Yes, dear parents, this Anandam was indeed Anantam, eternal bliss. Anandam, Anandam, Anandam. Thank you. I request you all to kindly rise up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all, dear parents. Before you leave, there is also another PowerPoint presentation of all our ex-students right from 1983. So please go through. First batch was 1989 and we started in 1983 with only 3 students and 5 teachers. So please move. You can, as you go out, you will see the PowerPoint presentation. Don't miss it. And also have a little, just a little delicacy of one particular state of our country. Thank you so much.